हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th क्लास ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਕਨਸੈਪਟਸ, ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देखते हैं हम साडा फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨਸ। ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥਲੈਸ ਲੈਂਥ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲਾਈਨਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, A ਪੁਆਇੰਟ B ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ एंड P पॉइंट तो भी लाइन होगी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। वो साडे कोल की होगी लाइन। लाइन की होगी ब्रेडथलेस लेंथ, जिहदी असीं की करांगे ब्रेडथ नहीं मेजर कर सकते, सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं। की होगी लाइन। लेंथ भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सानू नहीं पता कित्थे तक जानी है, ठीक है जी। वो हुंदी है लाइन। उस तो बाद आएगा अपने कोल नैक्सट टॉपिक इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स की होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंदियां ने कि जो 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ L ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ M ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? L ਐਂਡ M 2 ਲਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? O ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰਨ, ਮਿਲਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕਨਸੈਪਟ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਐਂਗਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ A ਪੁਆਇੰਟ A ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ OA ਐਂਡ OB ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ 2, ਤੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ BOA ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ AOB ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋ BAO ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਕਿਊਟ, ਰਾਈਟ, ਅਬਟਿਊਸ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਕਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ये वाला एंगल है अपने को एक्यूट एंगल। सपोज कर लो ये मेजरमेंट अपने को 35 है जो 45 है, ठीक है जी। इट मीनस 90 तो 0 तो लेके 90 के बिटवीन जो भी अपने को एंगल होगा वो साडा की होगा एक्यूट एंगल होगा। इस तो बाद राइट एंगल, ठीक है जी। सैकेंड अपने को हैगा फोर्थ का सैकेंड पार्ट राइट एंगल। राइट एंगल किहड़े हुंदे ने जिन्हां दी मेजरमेंट की हुंदी है 90 डिग्री हुंदी है। इट मीनस अपने को एंगल की मेजरमेंट की होगी 90 डिग्री, तो अपने को की हो गया राइट एंगल, ठीक है जी, राइट एंगल। उस तो बाद नैक्सट हैगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हुंदे ने जिन्हां दी जिहड़ी हैगी मेजरमेंट 90 डिग्री तो अबव हो, ठीक है जी। 90 डिग्री तो बड़े होणगे, इट मीनस 180 डिग्री तो छोटे होणगे, वो सारे सारे की नेगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है जी। इस तरीके नाल बनावांगे आप ऑब्ट्यूज दी एंगल। देखो ते 90 डिग्री है ते है थोड़ा जिहा 90 डिग्री ते निकल जाओ, तो ये अपने को की हो गया जिहड़ा हैगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है जी। जिन्हां दी मेजरमेंट की होगी 90 डिग्री तो ग्रेटर होगी वो सारे होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नैक्सट हैगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हुंदा है स्ट्रेट लाइन इस तरीके नाल, ठीक है जी। ये वाला कोई पॉइंट है ऊपर अपने को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन ये पूरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलांगे 180 डिग्री, ठीक है जी। स्ट्रेट एंगल की जिहड़ी मेजरमेंट हुंदी है 180 डिग्री। इस तो बाद हैगा नैक्सट अपने को रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल किहड़े हुंदे ने देखो जिन्हां दी मेजरमेंट 180 तो अबव एंड 360 तो लैस हुंदी आ वो साडे कोल हुंदे ने रिफ्लैक्स एंगल, ठीक है जी। जिन्हां दी मेजरमेंट 180 डिग्री तो अबव एंड 180 डिग्री तो ग्रेटर एंड 360 तो लैस होगी वो साडे किहड़े होणगे रिफ्लैक्स एंगल, ठीक है जी। नैक्सट अपने को हैगा पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स की होगा देखो हुण सपोज कर लो साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन है इहदे उपर जिन्ने भी एंगल बनणगे, ठीक है जी। सपोज कर लो ये लाइन है इहदे उपर किन्ने भी एंगल बनणगे, एक ये एंगल बन रहा है सपोज कर लो इहदा नाम 1 है, इनू 2 लैट कर लो, इनू 3 लैट कर लो, इनू 4 लैट कर लो, तो ये सारे की हो गए पेयर्स हो गए अपने को, ठीक है जी। इन्होंने बोलांगे सी पेयर्स ऑफ एंगल्स मीनस जिन्ने भी लाइन के ऊपर एंगल बनणगे वो की होणगे पेयर होणगे। इस तो बाद नैक्सट अपने को हैगा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स किहड़े हुंदे ने कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स हुंदे ने कि टू पेयर, ठीक है जी। एंगल दे टू पेयर सपोज कर लो ए वाली एक ए है 1 एंड एक 2 ये वाले दो एंगल ने अगर इन्हां 2 दा जिहड़ी हैगी मेजरमेंट ਅਸੀਂ दोनों एंगल्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ 90 ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 1 ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 45 ਹੈ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 45 प्लस 45 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 90 डिग्री ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 90 डिग्री ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 डिग्री ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पेयर होने चाहिए ने टू एंगल्स से, ठीक है जी। टू एंगल्स के पेयर जिन्हों की मेजरमेंट 90 डिग्री हो किहड़े होंगे अपने कोले कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। नैक्सट है सप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है जी। सप्लीमेंटरी एंगल्स के विच की होगा कि पेयर ऑफ एंगल्स नूं जदों असीं ऐड करांगे, ठीक है टू पेयर ऑफ एंगल्स सपोज कर लो ये अगर असीं इन्हां नूं ऐड करिए 90 90 ले लो, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन बना लोगे असीं इन्हां दोनों एंगल्स नूं ऐड करिए 90 प्लस 90 की हो गया अपने को 180 डिग्री। जिन्ना दी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स जिहड़ा हैगा प्लस होगा 180 डिग्री उन्होंने असीं की कहांगे सप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है जी। टू पेयर होने चाहिए ने टू पेयर्स का जिहड़ा सम होगा अपने को होगा 180 डिग्री उन्होंने असीं बोलांगे सप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है जी। नैक्सट हैगा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किहड़े हुंदे ने वो एंगल्स जिन्हां दे विच कोई कॉमन रे होगी, ठीक है जी। जिन्हां दी कॉमन रे होगी जिवें मैं बनावां, ठीक है जी। ये वाले एंगल बना लिए आपां देखो ये लाइन है ये वाली लाइन है ये वाली लाइन है ये वाली लाइन है, ठीक है जी। हुण इहदे विच एडजेसेंट एंगल किहड़े होंगे सपोज कर लो ये वाली एंगल का नाम है थोड़े कोले 1 इहदा 2 इहदा 3। हुण अगर मैं लिखा 2 एंड 3 ये दोनों एंगल मेरे को किहड़े ने एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्यों ने क्योंकि इन्हां दे विच दोनों दे विच ये वाली कॉमन रे पई है, ठीक है। इनू ले लो ए ले लो बी ए ले लो सी ए ले लो डी। हुण 1 ते जेड़ा 2 ते 3 एंगल है, ठीक है जी। 2 एंड 3 एंगल उन्हां दी कॉमन रे की है ओ भी तो फिर ये अपने को की हो गए
एडजैसेंट एंगल। ठीक है जी। नैक्सट असीं कह सकते हैं जिहड़ा हैगा 2 एंड एंगल 2 एंड एंगल 1, ये भी अपने कोल की ने एडजैसेंट एंगल ने, क्योंकि इन्हां दे विच भी कॉमन रहे आ। बट जे कहिए असीं 1 एंड 3, 1 एंड 3 नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हां दे विच कोई भी एडजैसेंट जिहड़ी हैगी है, कोई भी लाइन कॉमन नहीं हैगी, कोई भी रे कॉमन नहीं हैगी। एडजैसेंट एंगल किहड़े होणगे जिन्हां दे विच की होगी एक रे जिहड़ी हैगी कॉमन होगी। ठीक है जी, उन्हां नूं असीं बोलांगे एडजैसेंट एंगल्स। इस तो बाद हैगा नैक्सट टॉपिक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर की हुंदे ने कि एक लाइन के उपर जिन्ने भी एंगल बन, ठीक है जी, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन के उपर सपोज कर ले ये वाला एंड ये वाला 1 2, तो की होगा ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, ये उपर जिन्ने भी एंगल बनेंगे उन्होंने सम की होगा 180 डिग्री, तो इन्होंने असीं बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अगे एक्सरसाइज ये सारे यूज होने ने, ध्यान नाल देख लो। ठीक है जी, उस तो बाद है नैक्सट अपने को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किहड़े हुंदे, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सपोज कर लो 2 लाइन्स अपने को किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसैक्ट कर रही ने, ये वाली 2 लाइन इस तरीके नाल इंटरसैक्ट कर रही ने वो पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट के ऊपर, तो हम लिख के ये वाली साइड एंगल बन रहा है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किहड़ी होगी, इस एंगल की ऑपोजिट डायरेक्शन देखिए तो अपने को ये वाली होगी। ठीक है जी, तो इन्होंने असीं बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली इस ले लिए 3 के सामने वाली बिल्कुल ऑपोजिट 4 हो गया, तो 3 एंड 4 की हो गया अपने को जिहड़े हैगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंदे ने जिहड़े आपस दे विच इक्वल होणगे। इट मीनस की होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली ऑपोजिट आपस दे विच इक्वल होंदे ने, जिहड़े आपस दे विच ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच बनदे ने उन्हां नूं असीं की बोलदे आ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तो बाद है नैक्सट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किवें बनदे आ, देखो अगर साडे कोल 2 पैरेलल लाइन्स ने, ठीक है जी, उन्होंने कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, 2 पैरेलल लाइन्स ने, पैरेलल लाइन्स किहड़ियां हुंदियां ने जिन्हां दे आपस दे विच डिस्टेंस मेंटेन हुंदी है। ठीक है जी, ये साडे कोल 2 पैरेलल लाइन्स ने, सपोज कर लो ये वाली लाइन अपने कोल L हैगी, ये वाली M, एंड इन्हां नूं कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके नाल कोई लाइन कट कर रही है, ये अपनी लै लो P लाइन लै लो। ठीक है जी, कोई भी नेम राइट कर लो। हुण असीं बनाउणे आ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखो हुण ये वाली लाइन्स ट्रांसवर्सल लाइन हैगी है जिहड़ी वो फर्स्ट लाइन नूं इस पॉइंट के उपर कट कर रही है एंड सैकेंड पॉइंट नूं इस। ठीक है जी, हुण देखो इहदी इस वाली साइड राइट साइड ते भी एंड लैफ्ट साइड ते भी एक एंगल बन रहा है, इहनूं लै लै कि मैं फर्स्ट एंगल, इहनूं लै लईए असीं सैकेंड एंगल। ठीक है जी, इस तो बाद देखो सेम उस तो बाद अगे जाके ट्रांसवर्सल लाइन इस वाले पॉइंट के उपर कट कर रही है, ये वाली लाइन के ऊपर भी एक एंगल मारे है, सपोज कर लो ये 3 है, सपोज कर लो ये 4। हुण देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की सेम डायरेक्शन दे विच, सेम डायरेक्शन दे विच जो एंगल बनते हैं उन्होंने असीं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जिवें अपने कोल 1 सेम इस पहला देखो ये वाली लाइन इस पॉइंट के ऊपर कट्टी, ये वाली साइड ते एंगल बनया 1 एंड जो नीचे गई वो उन्हें इस पॉइंट के ऊपर कट्टे एंड ये वाली साइड एंगल बनया 3। इट मीनस एंगल 1 एंड एंगल 3 साडे कोल की हो गए ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस दे विच की हुंदे आ इक्वल हुंदे आ। अगर देखो ना उस तो बाद एंगल 2 एंड एंगल 4, अगर असीं ऑपोजिट देखिए, ठीक है जी, ऑपोजिट देखिए तो साडे कोल इत्थे भी एक एंगल बन रहा एंड इत्थे भी एक एंगल बन रहा। इन्हूं लै लईए असीं 5, इन्हूं लै लईए असीं 6, इन्हूं लै लईए असीं 7 एंड इन्हूं लै लईए असीं 8। ठीक है जी, तो 7 एंड 5, 7 एंड 5 भी साडे कोल की हो गए। देखो ये ऊपर वाली साइड बन रही सी, ये नीचे वाली साइड बन रहे हैं, है तो क्रॉसपॉन्डिंग ही ने। इट मीनस की हो गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 ते आउगा एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल की लिखांगे असीं 8। तो ये सारे साडे कोल की हो गए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस दे विच की हुंदे आ इक्वल हुंदे। ठीक है, ये याद रखना सारा। उस तो बाद हैगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हुण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किहड़े हुंदे ने, नैक्सट पार्ट हैगा अपने कोले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 7th पार्ट दे विच इंटीरियर एंगल्स जो विच वाली साइड, ठीक है जी, अपने कोल एक ये पैरेलल लाइन्स है, ये वाली साइड, इट मीनस इंटीरियर का मतलब है जो विच एंगल बनने हैं। हुण विच एंगल अपने कोल किहड़े-किहड़े बन रहे हैं 5 6 3 एंड 4, 3 4 5 6 4 एंगल्स बन रहे हैं। हुण इत्थे क्या था सानू अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब उल्टा हो गया कि एक साडे कोल ट्रांसवर्सल लाइन दे इस वाली साइड एंगल बने ते दूसरा इस वाली साइड। ठीक है जी,
क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ φ ਐਂਡ ਐਂਗਲ 4, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ये साडे कोले की हो गए अल्टरनेट एंटीरियर एंगल जो बीच वाले एंड अल्टरनेट एंटीरियर एंगल भी हमेशा आपस दे विच इक्वल हुंदे ने। तो एंगल 5 इज इक्वल टू किहदा है जो एंगल 4 दे एंड एंगल 3 इज इक्वल टू किहदा है जो एंगल 6 दे। ये तो सीगे अपने कोले एंटीरियर। इस तो बाद नेक्स्ट गल कर रहे हैं अपने कोले एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल हुण कि वही अल्टरनेट एक्सटीरियर जो बाहरली साइड बनणगे, बाहरली साइड बना रहे 1 2 7 8, तो हम अल्टरनेट किहड़े हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच 1 एंड 8। इट मीनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 दे आ जाऊगा एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ये साडे कोल हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये साडे कोल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर जिहड़े हो गए अल्टरनेट एंगल जिहड़े हुंदे वो हमेशा आपस दे विच इक्वल हुंदे, ठीक है जी। इस तो अलग अपने कोले को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब की है इत्थे कि साडे कोले टू पैरेलल लाइनस ने, उन्होंने एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है एंड उहदी सेम डायरेक्शन दे विच, ठीक है जी। सेम डायरेक्शन दे विच जो एंगल बने जिवें इत्थे 5 आ रहा है एंड इत्थे 3 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है एंड 4 इंटीरियर विच वाली साइड, उन्हां दा सम की होगा 180 डिग्री। इट मीनस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू किहदे होगा 180, ठीक है जी। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 किहदे इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। ये होंगे सारे को इंटीरियर एंगल्स जो टू पैरेलल लाइन्स होंगे ने उन्हां दी विच वाली साइड ते सेम साइड्स ते बनते हैं, उन्हां दा असीं सम कर दिए प्लस कर दिए तो किहदे इक्वल हुंदागा 180 डिग्री। असीं 5th चैप्टर दे विच एक्सियूम भी पढ़िया सी, ठीक है जी। हुण देखो सारे जिहड़ी साडी एक्सरसाइज है 6.1 इन्हां सारे कॉन्सैप्ट ते बेस है। एक बार सारा तुसीं इहनूं दोबारा रिवाइज कर लो। हुण आपां स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। अपने को लेगा एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम। देखो इस की कह रहे हैं कि इन दी गिवन फिगर अपन फिगर दी हुई है एंड की कहता है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अपने को टू लाइंस ने ए बी, ए वाली लाइन ए बी एंड सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रही ने किहड़े पॉइंट के ऊपर कट कर रही ने ओ पॉइंट के ऊपर एंड एंगल ए ओ सी, ए वाला एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सानू दिता होया बी ओ ई, ए वाला एंगल इज इक्वल टू किहदे दिता आपां नूं 70 डिग्री। दोनों का सम 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी सानू ए वाला एंगल देता 40 डिग्री, ठीक है जी। असी फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड असी ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हुण देखो अगर असी देखिए सानू ये दो एंगल्स का सम दिता है, ठीक है जी। दो एंगल्स का सम दिता है बट अगर ध्यान ना देखिए तो ए भी साडे कोल एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो असी की लिखांगे देखो सोल्यूशन दे विच कि ए बी is a straight line, तो हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनते हैं, ठीक है जी, उन्होंने असीं बोलते हैं लीनियर पेयर एंड उन्हों का सम की हुंदा है 180 डिग्री। तो हुण इत्थे साडे कोल इस लाइन के ऊपर वाली साइड देखिए तो 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है जी। इन्हां तीनों एंगल्स नूं असीं प्लस करांगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन्होंने असीं की बोलदे हुंदे आ लीनियर पेयर। स्टार्टिंग दिस पढ़िया सी असीं ने, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो सानू जिहड़ा हैगा गिवन दिता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किहदे इक्वल 70 डिग्री दे। अगर असीं इन्हां नूं इकट्ठे कर लईए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई सी सॉरी इत्थे बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुण ये अपने को वैल्यू हैगी 70 प्लस एंगल सी ओ ई की है अपने को 180 एंड एंगल सी ओ ई 180 माइनस 70 एंगल सी ओ ई की देखो आ गया माइनस करांगे 110। तो देखो सी ओ ई सन की क्या की रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स लिए एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ रिफ्लेक्स, ठीक है जी। ताकि आ जाएगा 360 माइनस 110 360 के ਵਿੱਚੋਂ 110 माइनस करांगे 0 5 250 आ गया साडे कोल एंगल सी ओ ई। फर्स्ट एंगल असीं फाइंड आउट कर लिया।
इस तो बाद देखो सानू चाहिए एंगल BOE BOE ये साडे कोले आ गया 110 इत्थे नहीं रिफ्लेक्स लेके चलना ठीक है जी इत्थे तो इत्थे सिर्फ सानू कहा सीगा कि सिर्फ रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना वैसे साडे कोले जेडी एंगल COE दी वैल्यू की है 110 है ठीक है हुण ए वाला एंगल भी पता है अपन ए वाला एंगल भी पता है सानू नहीं पता ए वाला ठीक है हुण ਅਸੀਂ देखिए तो साडे कोले CD की है एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है जी CD is a straight line तो अपने को ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਗਲ COE प्लस एंगल EOB जब BOE कर दो प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री ये भी लीनियर पेयर ने ठीक है जी हम COE की वैल्यू ਅਸੀਂ फाइंड आउट ਕੀਤੀ है 110 प्लस BOE ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है BOE ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ एंड BOD की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री 40 पुट कर दो इज इक्वल टू 180 दोनों ने प्लस करो 150 हो गया प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150 माइनस करांगे एंगल BOE की इक्वल आ गया साडे कोले 30 डिग्री ये ਅਸੀਂ फाइंड आउट करने ਸੀ टू एंगल ठीक है जी इसी का साडा फर्स्ट क्वेश्चन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ क्वेश्चन हाँ जी नैक्सट अपने को लगा सैकंड क्वेश्चन देखो सैकंड क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते इन दी गिवन फिगर अपन फिगर दी है ठीक है जी लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O अपन लाइन्स देतियां XY एंड MN ये वाली लाइन हैगी MN दोनों किहड़े पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही ने कट रही ने O पॉइंट के ऊपर ठीक है जी उस बाद कहता कहते इफ एंगल POY ये वाला एंगल POY इज इक्वल टू किहदे अपन 90 डिग्री देता एंड एंगल जी सानू रेशियो देती A एंड B ये दोनों एंगल्स की रेशियो देती सानू 2:3 ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है एंगल C जिथे भी रेशियो दी होवे सानू जिथों भी सानू रेशियो दी होवे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਿਓ B ਐਂਡ C ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ A ਐਂਡ B ਉਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਿਓ ਲੈਟ A इज इक्वल टू दोनों ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ x ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ A ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ 2x ਐਂਡ ਐਂਗਲ B ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 3x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ एंगल A ਨੂੰ 2x ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਂਗਲ B ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3x ਐਂਗਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ POY ਗਿਵਨ ਹੈ 90 डिग्री अगर ਅਸੀਂ देखिए कि XY ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिन्ने भी पेयर बनते होंगे एंगल्स से उन्होंने सम 180 डिग्री होंगे तो अपने को 3 एंगल बनी जा रहे हैं फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड 3 एंगल बनी जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर XY ऊपर तो असं की लिख सकते हैं कि XY इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है जी स्ट्रेट लाइन है एंड एंगल कि हो गए साढ़े को एंगल XOM प्लस ये वाला XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 किहड़े हो गए ये लीनियर पेयर ठीक है जी लीनियर पेयर हो गए किहड़े एंगल XOM प्लस MOP प्लस POY ए वाला एंगल एंड ए वाला एंगल एंड ए वाला एंगल तिन्नों को प्लस किया कि आ गया 180 डिग्री क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रही है हुण एंगल XOM की अपने को B नूं सी सिलेक्ट किया 3x प्लस MOP A है A नूं सी सिलेक्ट किया 2x पर आ गए बट सानू POY गिवन है POY कितना दिता है अपन 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 2x ते 3x 5x 90 ਜਿਹੜਾ विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है राइट साइड पे ले जाएंगे 180 माइनस 90 ठीक है जी 5x 180 ਦੇ ਵਿੱਚ 90 माइनस करांगे 90 आ गया एंड x की वैल्यू की आ गई फिर साडे कोले 90 ओवर 5 90 ਨੂੰ 5 ਤੇ डिवाइड करो देखो 90 ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करांगे 5 ਨਾਲ 1 5 एंड रिमाइंडर 4 आ गया 0 देखो 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 8 जा 40 आ गया इट मीन्स x की वैल्यू साडे कोल की आ गई 18 x इज इक्वल टू 18 डिग्री तो फिर उसे एंगल फाइंड आउट करिए एंगल A की आ गया फिर अपने कोल 2 × 18
36 डिग्री एंड 2 × 18 54 डिग्री। एंगल ए अपने को 36 डिग्री है एंड एंगल बी अपने को की हो गया 54, क्योंकि जो ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 54 डिग्री। ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ b, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਐਂਗਲ c ਵੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ mn ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, mn इज आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन है mn में। तो देखो अपने को जी इस लाइन के उपर कि एंगल बन रहे हैं XOM एंड XON, दोनों ने प्लस करांगे, एंगल XOM प्लस एंगल दूसरा एंगल है अपने को XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ने। हम देखो XOM अपने को गिवन है 54 प्लस x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ XON ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ c ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਤਾਂ ਐਂਗਲ c ਕੀ ਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 180 ਮਾਈਨਸ 54 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 6 7 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਐਂਡ 126 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ c ਦੀ, ਜੋ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी, नैक्सट अपने को लेगा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन च की क्या है, कहते इन दी गिवन फिगर अपन फिगर दी हुई है उस की क्या कि एंगल PQR ए वाला एंगल PQR ए वाला एंगल बीच वाला एंगल, ठीक है जी, इज इक्वल टू की है एंगल PRQD ए वाले एंगल ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਨੂੰ गिवन देता पहले, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ करना है, कहते देन प्रूव दैट, तो ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ करो कि एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PQS इज इक्वल टू कि है एंगल PRT, ये बाहरले दोनों एंगल से इक्वल है। जे ए वाले बीच वाले एंगल इक्वल ने तो की कहते हो बाहरले एंगल भी इक्वल होंगे, ਅਸੀਂ प्रूफ करना है, ठीक है जी। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ देखिए कि साडे कोल जो है ST एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ दो पेयर तो एंगल ए बन रहे हैं एंड 2 पेयर ए बन रहे हैं, ठीक है जी। तो लीनियर पेयर हो गए हैं, लीनियर पेयर किहदे इक्वल होंदे ने 180 डिग्री दे। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ST इज आ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा कि एंगल PQR ये वाला एंगल PQR प्लस, क्योंकि दो पेयर मारे ने, एक ये मारे दोनों ने प्लस करांगे, एंगल PQR एंगल PQS प्लस एंगल PQS दे इज इक्वल टू की होगा 180 डिग्री की होगी साडे कोले लीनियर पेयर, ठीक है जी। अगर मैं इथों एंगल जिहड़ा हैगा PQR दी वैल्यू फाइंड आउट कਰਾਂ, एंगल PQR की इक्वल होगा 180, ये वाला एंगल पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस एंगल PQS दी। इनू लेट कर लिए कि साडे कोले इक्वेशन 1, ठीक है जी। फर्स्ट पेयर लैके चले सी, हुण ए वाले भी 2 पेयर मारे ने, इन्हां दा सम करांगे आपां। देखो की लिखांगे कि एंगल PRQ ए वाला एंगल PRQ एंड प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी की है साडे कोले लीनियर पेयर है, ठीक है जी। हुण इत्थों देखो असीं अगर एंगल PRQ विच वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, एंगल PRQ की इक्वल होगा फिर ये 180 डिग्री माइनस PRT दे, पॉजिटिव सी दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो गया। इनू ले लो इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन ले लो। तो देखो सानू गिवन दिता होया है स्टार्टिंग दे विच की होया कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल की दे PRQ दे। अगर मैं इत्थे PRQ दी जगह ते PQR फिल करदा, PRQ की जगह पे PQR फिल करदा सैकंड इक्वेशन दे विच, मींस दोनों दे विच कोई भी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू भर सकते हैं। या तो ਅਸੀਂ PQR की जगह पे PRQ लिख सकते हैं या फिर PRQ की जगह पे PQR लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं सैकंड दे विच लिखा, ठीक है जी, एंगल PRQ की जगह पे मैं की फिल करता PQR इज इक्वल टू की देगा 180 माइनस PRT। अगर मैंने लेट कर लें कि इक्वेशन 3 है, तो देखो अगर 1 and 3 फ्रॉम
फ्रॉम 1 and 3 1 and 3 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਐਂਗਲ पी क्यू आर है, ठीक है जी, ये भी पी क्यू है, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो मेरी राइट साइड भी इक्वल होगी। जो ये वाले एंगल इक्वल है तो मेरे ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इट मींस की आ जाएगा मेरे को 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू की आ जाएगा दूसरा जो अपने को है 180 माइनस की इक्वल होगा है पी आर जो है अपने को पी आर टी सी इतनी एंगल पी आर टी देख लाऊंगा, ठीक है जी। हम अगर मैं 180 डिग्री इस साइड ले आऊँ लेफ्ट राइट साइड तो लेफ्ट साइड पे ले पी क्यू एस इनएक्टिव हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी आर टी, ठीक है जी। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, मेरे को की बचे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी दे माइनस ना माइनस कैंसिल हो गया ताकि रह गया पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। चेक करो कि असं प्रूफ की करना सी एंगल पी क्यू एस, ठीक है जी, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी दे इक्वल आ गए। इट मींस हैंस दी प्रूफ साडा रिजल्ट जिहड़ा हैगा सी वो प्रूफ हो गया जो असं प्रूफ करना सीगा, ठीक है जी। इसी का साडा थर्ड क्वेश्चन। हुण आपां चलदे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट अपने को लगा फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहते इन दी गिवन फिगर अपन फिगर देती, ठीक है जी। इफ x प्लस वाई ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू की w प्लस जेड ये वाले एंगल दे, ठीक है जी। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। असी प्रूव करना है कि AOB एक की लाइन है, ठीक है जी। लाइन कदों आती है जो साढ़े को ऊपर जो भी एंगल बन रहे हैं उन्होंने सम की होगा 180 डिग्री होगा, जब उस लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बनेंगे तो की होगी साढ़े को स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है जी, क्लाइन होगी। हुण अगर असी अपनी फिगर को ऑब्जर्व करिए ध्यान नाल देखिए तो सानू पता है कि ए पॉइंट के ऊपर एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, ठीक है जी। इस तरीके नाल एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है जी। हुण इस पॉइंट के ऊपर जो साडे कोल कंप्लीट एंगल हुंदा ओहदा सम की हुंदा 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल का सम 360 हुंदा है क्योंकि ये वाली सारा जिहड़ा हैगा वो पॉइंट के ऊपर एक एंगल कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है जी। सारे मिला के एक कंप्लीट एंगल बन रहे। अगर मैं प्लस करदा फिर इत्थे प्लस करदा सोल्यूशन दे विच देखो की होगा कंप्लीट एंगल, इट मीन सारे एंगल का सम की होगा साडे कोले 360 डिग्री होगा। तो अपने कोल एंगल है कि नहीं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम देखो सानू गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z दे, ठीक है जी। तो असीं की लिखांगे ये सानू गिवन है पहले ही दे रखिया, ठीक है जी। अगर मैं x प्लस वाई की जगह दी x प्लस वाई या w प्लस z दोनों के विचों w प्लस z की जगह पे फिल करदा x प्लस वाई, ठीक है जी। तो की होगा देखो x प्लस वाई प्लस w प्लस z की जगह पे क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। हम देखो एंगल x प्लस एंगल x दोनों ने प्लस करेंगे, एंगल 2x हो गया, एंगल y प्लस एंगल y एंगल 2y हो गया इज इक्वल टू 360, ठीक है जी। 2 कॉमन x प्लस y इज इक्वल टू 360। हम ये 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 360 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। हम देखो x प्लस y लीनियर पेयर ने ये लाइन बन रही आ रही है, इट मींस इनका सम की निकल आ गया 180 डिग्री दे आ गया। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि एंगल x एंड एंगल y आर लीनियर पेयर्स, ठीक है जी। सो AOB इज अ लाइन। तो AOB की होगी साडी एक लाइन होगी क्योंकि लीनियर पेयर के जो एंगल होंगे उनका सम की होंदा 180 डिग्री ते साडे कोल एक आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी। तो x ते y साडे कोल लीनियर पेयर हो गए एंड AOB की होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है जी। इसी का साडा फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट अपने को है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते इन दी गिवन फिगर अपन फिगर देती वो कहता है कि POQ एक लाइन है, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन है। रे OR अपने को एक रे है इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ
ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾइन ਕੀ है PQ ਦੇ ਉੱਪਰ 90 डिग्री ਦਾ एंगल बना रही है ठीक है जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है एंड QS अपने को कोई अनदर ले है ਜਿਹੜੀ लाई कर रही है ठीक है जी की लाई कर रही है ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ एंगल ਜਿਹੜਾ ROS है ये वाला ROS इज इक्वल टू की दिया हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS ठीक है जी ये ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ OR ਰੇ ਆ ਉਹ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है साडी लाइन ਦੇ ਉੱਪਰ लाइन की गिवन ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 90 डिग्री ਦਾ एंगल बना रही है इट मींस ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ROQ ये भी 90 डिग्री ਦਾ एंड एंगल ROP ये भी 90 डिग्री ठीक है जी के लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो दोनों साइड से ਜਿਹੜੇ एंगल ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 90 डिग्री ਦੇ ਹੋਣਗੇ क्योंकि इस लाइन ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ परपेंडिकुलर ड्रॉ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ गिवन ਦਿੱਤਾ ਹੈ स्टेटमेंट तो इट मींस ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ROQ एंगल ROQ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 90 डिग्री ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एंगल ਇਹ ਵਾਲਾ ROP ये भी साडे कोल की है 90 डिग्री है इनू ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एंगल ROS प्लस एंगल SOP दोनों ने प्लस करिए तो 90 डिग्री तक आ जाएगा इट मींस की लिखता मैं एंगल POS ये वाला एंगल प्लस एंगल SOR इन्हें दोनों ने प्लस करता क्योंकि ये वाली साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये वाली साइड पे भी ये वाली साइड से अपन ये 90 डिग्री का एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है दोनों ने प्लस करता अपने ਜਿਹੜੇ टू पार्ट्स आए ने तो किरे को लग गया 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 डिग्री ठीक है जी ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ SOR ਜਾਂ ROS ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ SOR क्योंकि सानू ROS चाहिए ठीक है जी ਜਾਂ SOR लिख लो ਜਾਂ ROS लिख लो सेम ही है मैं SOR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ SOR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ POS ਨੂੰ राइट साइड पे लेके जाऊंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो ठीक है जी फर्स्ट तो मैं इतना फाइंड आउट कर लिया उस तो देखो मेरे को एंगल जेड़ा है QOR ये वाला एंगल 90 डिग्री है ठीक है जी ये वाला एंगल 90 डिग्री है उस तो बाद अगर मैं एंगल QOS जेड़ा एंगल मेरा है QOS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं माइनस करदा एंगल पूरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं एंगल माइनस करदा SOR ये मेरे को पूरा एंगल है इस तरीके ਨਾਲ ठीक है जी राइट एंगल ये पूरा एंगल है ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ एंगल माइनस कर दी ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ पूरा राइट एंगल ਬਚੂਗਾ ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ SOQ पूरा एंगल ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ SOR ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ QOS पूरा एंगल ਜਾਂ SOQ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ बस सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ QOS ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸੀ ROS ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ROQ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 90 डिग्री ਹੈ ਨਾ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट कर ला ROS क्योंकि मैंने ROS की वैल्यू चाहिए ROS की वैल्यू फाइंड आउट करांगे तो जेड़ा हैगा मेरे कोले QOS देखो ROS में दूसरी साइड लेगी लेफ्ट साइड तो अपन राइट साइड पे ले जाएंगे जेड़ा साडे कोले 90 है राइट साइड तो लेफ्ट साइड पे लेके आवांगे नेगेटिव हो जाएगा इनु इक्वेशन सेकंड लेट कर इस तो बाद अगर मैं दोनों नु ऐड कर ला फर्स्ट एंड सेकंड नु ऐड कर ला इनको लिखो एडिंग 1 एंड 2 दोनों नु सी ऐड करिए तो देखो अपने कोले हैगा एंगल SOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस एंगल POS प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ एंगल QOS माइनस 90 ਹੁਣ ਇਹ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कैंसिल हो गए दोनों सेम ने SOR ROS ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ठीक है जी दोनों ਨੂੰ ऐड करेंगे अपने ਕੋਲ एंगल ਕੀ ਹੈਗਾ एंगल ROS लिख लो ਇਹਨੂੰ ठीक है जी दोनों ਨੂੰ ऐड ਕੀਤਾ सेम ने क्योंकि ਅਸੀਂ SOR ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ROS ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ प्लस एंगल ROS दोनों ਨੂੰ प्लस ਕਰਾਂਗੇ 2 ROS हो गया ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ एंगल QOS नेगेटिव वाले ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ ठीक है जी POS ਇਹ ਬਚਿਆ
ਹੁਣ देखो एंगल आर ओ एस इस नाल 2 है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अपने को एक निकल आ गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस दे। यही असीं प्रूव करना सीगा। ठीक है जी, की प्रूव करना सी एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 हाफ डे क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये आप प्रूव करना सी। ठीक है जी, इसी साडा 5th क्वेश्चन। हुण आपां चलदे नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट अपने को लगा 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहते इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड बाई पी फाइंड। असीं की फाइंड आउट करना एक्स बाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू बाई पी। हुण देखो इत्थे की हैगा, आपां नूं कहते कि आपां ने फिगर ड्रॉ करनी है, जो भी सानूं इन्फॉर्मेशन दी है। सानूं एंगल देता एक्स वाई जेड, ठीक है जी, एक्स वाई जेड एंड सानू की कहा भी जो साडे कोले हैगी है वाई जेड नूं अगे प्रोड्यूस कीता है, किहदे तक आपां नूं प्रोड्यूस कीता है ये पी पॉइंट तक। तो साडे कोले सेंटर दे विच पॉइंट हो गया वाई। ठीक है जी, इस तो बाद आपां नूं एंगल दिता होया जिहड़ा हैगा एक्स वाई जेड। इस तरीके नाल ये वाली जिहड़ी लाइन हैगी है ये प्रोड्यूस हो रही है अगे नेक्स्ट पी पॉइंट तक जा रही है एंड ये अपने को होगी एक्स। एंगल केवल दिता है एक्स बाई जेड, ये वाला पॉइंट अपने को जेड हो गया, ये अपने गिवन दिता 64 डिग्री। इस तो सानू की कहा ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे देती वाई क्यू। ठीक है जी, वाई ये पॉइंट हो गया, ये वाली दे विच एक रे होगी जिहड़ी की कर रही है एंगल जिहड़ी हैगी अपने को एंगल जेड बाई पी नूं टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रही है। ठीक है जी, बाइसेक्ट्स क्या है, इट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रही है। तो ये वाला अपने को जिहड़ी हैगी है पॉइंट एंगल जिहड़ा हैगा जेड बाई पी रे की हैगी है बाई क्यू, ये वाला पॉइंट अपने को है। ये साडी डायग्राम होगी जिहड़ी ड्रॉ। ठीक है जी, हुण देखो सानू गिवन दिता होया इहदे विच एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। हुण सानू पता है कि ओ बाई जिहड़ा क्यू बाई बाइसेक्ट किहदा हैगा पी बाई जेड दा। तां की सी लिखांगे क्यू बाई इज बाइसेक्ट्स एंगल जेड बाई पी, या पी जेड बाई लिख लो दोनों का। ठीक है जी, तो फिर जो ये बाइसेक्ट कर रहे इट मीनस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मीनस की लिखांगे असीं एंगल पी वाई क्यू, ये वाला एंगल की इक्वल होगा ये वाले एंगल दे। इट मीनस एंगल की आ गया फिर क्यू बाई जेड दे, दोनों आपस में इक्वल आ गए क्योंकि अपने को लिखी है क्यू बाई की एक बाइसेक्टर है। इस तो बाद देखो अगर असीं देखिए तो साडे कोल पी एक्स एक स्ट्रेट लाइन बनी जा रही है एंड ये ऊपर जो भी एंगल बनेगा इनका सम की होगा 180 डिग्री, क्योंकि सारे लीनियर पेयर होंगे ने। तो असीं की लिखांगे कि एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू बाई जेड प्लस एंगल जिहड़ा हैगा जेड बाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन्होंने उस लिख लेंगे कि ये की ने साडे कोले लीनियर पेयर। ठीक है जी, लीनियर पेयर हो गए। हुण देखो असीं की लिख सकते हैं क्यू बाई जेड एंड जेड बाई जिहड़ा हैगा पी बाई क्यू, इहदी जगह ते सेम क्योंकि आपस दे विच इक्वल नेगे। असीं की लिख सकते हैं क्यू बाई जेड की जगह ते पी बाई क्यू की जगह ते की लिखांगे आपां क्यू बाई जेड। ठीक है जी, क्यू बाई जेड लिख लिया मैं किहदी जगह ते ये वाली जगह ते। ठीक है जी, इस तो बाद क्यू बाई पी भी लिख सकते हैं, क्यू बाई पी लिख लो, लिखो पी बाई क्यू प्लस एंगल इहदी जगह ते इस लिख लीजिए पी बाई क्यू। ठीक है जी, इस तो बाद प्लस इहदी वैल्यू अपन दी हुई है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180। दोनों को प्लस करांगे अपने को की आ गया पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा एंगल 2 पी वाई क्यू। ठीक है जी, 64 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 64 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 116 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀ ਵਾਈ ਕਿਊ 160 ਮਾਈਨਸ 2 कैंसिल करांगे 58 आ गया एंड पी वाई क्यू इज इक्वल टू अपने को की आ गया 58 डिग्री।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ PYQ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ PYQ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 58 ਨੂੰ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇਗਾ 302 ਡਿਗਰੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ 302। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ XYQ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, XYQ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ PYQ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆएगा 58 डिग्री। ਜੇ ਇਹ 58 डिग्री है तो अपने को ये भी की होगा 58 डिग्री होगा। ठीक है जी, ये वाला भी 58 डिग्री होगा। हम सानू एंगल चाहिए XYQ ये वाला एंगल चाहिए ना, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਈਏਗਾ। एंगल XYQ इज इक्वल टू 58 प्लस 64 ये वाला एंगल ही चाहिए ना, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਆ ਗਿਆ 1 ਕੈਰੀ ਤੇ 100 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਕੈਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਹੋ ਗਿਆ 122 डिग्री ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 360। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।